ठीक है, तो क्या है transitional elements? These transitional elements are the element which have incomplete field d subshell either in neutral atom or in their ions. The transitional metals typically have incomplete filled d subshells or readily give rise to the ions with incompletely filled d subshells. Transitional elements are the elements which have incomplete filled d subshell either in a neutral atom or in their ion. The transitional elements typically have incomplete filled d subshell or readily give rise to the ions with incomplete filled d subshells. In group 12, period B, metal zinc, cadmium and mercury do not have this characteristic electronic configuration that they have completely filled the orbital, hence they're not regarded as transitional elements. What are the transitional elements? Transitional elements are the elements which have incomplete filled d subshell either in neutral atom or in their ion. The transition metal typically have incomplete filled d subshell or readily give rise to the ions with incomplete filled d subshells. The group 12 period B, metal zinc, cadmium and mercury do not have the characteristic electronic configuration. They are completely filled d orbital, hence are not regarded as transitional elements. The d block occupy the large middle section of the periodic table flanked between s and p block. Okay, and the d orbital of the ultimate energy level of atom receive electron giving rise to the 4 row of the transitional element, जैसे कि 3d 4d 5d 6d हो गया. देखो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहता है, लेकिन जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जो ग्रुप 12 और जो ग्रुप 12 और सेकेंड इसके ये हैं 12 2b के हैं, उनके पास कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो लोग जो है ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं कहलाते हैं. उसके बाद बोला है कि एस सेक्शन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक आता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होता है n-1 d 1 d 1 to 10 ns 0 to 2. ठीक है, और जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है उसमें क्रोमियम और कॉपर Cu जो होता है ना वो एमलगस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, क्योंकि क्रोमियम हाफ फिल्ड शो करता है और कंप्लीट फिल्ड शो करता है कॉपर, विच आर मोर स्टेबल. एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व, जैसे क्रोमियम का एक्सपेक्टेड कितना है कि 3d4 4s2 होगा, लेकिन होता है 3d5 4s1, और इसका होता है 3d9 4s2, तो इसका होता है 3d10 4s1. ठीक है, तो ट्रांजिशनल एलिमेंट के बारे में क्या पता है कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका इनकम्प्लीट डिसब्शेल होता है, या तो उसके न्यूट्रल एटम में होगा या तो उसके आयन में होगा. जो ग्रुप 12 में जो 2b होता है जिसमें जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आता है, वो लोग का कम्प्लीटली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल, इसलिए वो लोग नहीं होता उसमें. और जनरल हो गया, हम बताया कि जनरल था n-1 d 1 to 10 और ns बताया कि 0 से 2. ठीक है, फिर था कि जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो अब बता रहा है नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट रिसेंबल इन देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एज दे हैव सिमिलर ns2 और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटरमोस्ट एनर्जी सेल. ठीक है, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिसेंबल इन देयर Nearly all transition elements resemble in their physical and chemical property as they have similar ns2 orbital electronic configuration in the outermost energy cell. Physical property क्या है कि वो their hard metals have high tensile strength, ductility, malleability and are good conductor of heat and electricity. ठीक है, they have high melting and boiling point and form alloys with other metals. Their reactivity decreases with increase in their atomic number. ठीक है, वो लोग का जैसे वो का रिएक्टिविटी डिक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा वो लोग का रिएक्टिविटी डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि फिर वो लोग नॉन मेटल बनते रहेंगे. ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर.
All the transition elements are metal having HCP, BCP और ACC, BCC lattice energy. Metallic bond जो होता है वो metallic bond cause होता है due to the presence of one or two electron in the outermost energy level and also unpaired d electron. ग्रेटर द नंबर जितना ज़्यादा अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा मेटालिक बॉन्ड होगा. इसलिए सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है ये मेटालिक बॉन्ड में होता है क्रोमियम का, एमओ का और डब्ल्यू का. और जो सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है जो अदर हैंड में जो और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मेटालिक वीक हो जाएगा. सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन मेटल होता है? जिंक होता है, कैंडियम होता है और मरकरी होता है. अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से होता है. यानी कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका कम होगा उसका ये होगा. मैग्नीशियम ठीक है. हाँ, मैग्नीज और टेक्नीशियम का एबनॉर्मली लो होता है. मैग्नीज और टेक्टियम का एबनॉर्मली लो होता है. मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज अप टू द मिडिल ऑफ पार्टिकुलर सीरीज. और एक मिनट को लगता है गड़बड़ पड़ रहा है. देखो दिस मेटलिक और बॉइलिंग पॉइंट देखो दिस मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है. The melting point or transition element first rise to maximum then fall as the atomic number increases. जैसे कि मैग्नीज टेक्टियम के पास लो होगा. मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज अप टू मिडिल ऑफ पार्टिकुलर सीरीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो Cr, M और W के पास हाईएस्ट होगा. ठीक है. और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रेस्पेक्टिवली टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. टंगस्टन के पास बहुत हाईएस्ट रहता है. उसका रहता है 3683 K among the टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है टंगस्टन का. एज देयर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जिंक थोड़ा का लो रहेगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है इसका मरकरी का. ठीक है. उसके बाद इंथैल्पी एटमाइजेशन के बारे में. एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन ये कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट से कि जिंक हो गया, कैंडियम होगा और मर्करी हो गया, वो सब दे आर मच हार्डर. जो ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैंडियम और मर्करी को छोड़ के जो जितने भी जो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में वो हार्डर होते हैं और लेस वोलेटाइल होता है. उनके पास बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो जो द मैक्सिमम वैल्यू लाइज एट अबाउट मिडिल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेटिंग द इंटर इंट्रैक्शन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. The metals of 4D and 5D transition series have greater enthalpy of atomization than the corresponding element of the 3D series. This is due to the much more frequent metal bonding in their compound. ठीक है. जैसे देखो क्या है व्हाट स्मिथ थर्ड में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या याद करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैंडियम और मरकरी को छोड़कर उसको छोड़कर जो होता है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सब का वो सब हार्ड होते हैं और बहुत लेस वोलेटाइल होते हैं और उनके पास हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है. तो ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू लाइज एट अबाउट मिडिल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेटिंग द मैक्सिमम वैल्यूज लाइज एट about middle of each series number of unpaired electron. The metal of 4D and 5D transition series have greater enthalpy of atomization than the corresponding element of the first 3D series. This is due to the much more frequent metal bonding in their compound. Transition elements are much harder and less volatile. They exhibit high enthalpies of atomization. The maximum value जो होता है lies at the middle of each series, indicating the interatomic interaction increases with the number of unpaired electron d electron. क्यों बढ़ रहा है? जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा डी ऑर्बिटल में डी रहेगा उतना जो है
इंटराटॉमिक इंट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे तब जो 4D और 5D के जो ट्रांजिशन होते हैं, 4D एंड 5D, इनके पास ग्रेटर एंथैल्पी होता है करस्पॉन्डिंग 4D। जो 4D और 5D नंबर transition series have greater enthalpies than the corresponding element of the first 3D series, ठीक है। This is due to the much more frequent metal bonding in their compounds, ठीक है। ठीक है, तो ट्रांजिशन में एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास ज़्यादा वो बहुत हार्ड होगा और लेस वोलेटाइल होगा। जो होगा लिखा है हाई एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन, द मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है, इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन जो कि इंक्रीज करता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 4D और 5D के पास बहुत ज़्यादा होगा, 3D के पास ज़्यादा नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू द मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग इन देयर कंपाउंड। और इसमें दिया 3D सीरीज में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ 3D सीरीज में सबसे पहला ऑर्डर इन 3D सीरीज, ठीक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वरेडियम देखो जिंक मैग्नीज Zn Mn Sc Cu Cr Fe Co Ni Ti V। ज़्यादा वरेडियम के पास है, फिर टाइटेनियम के पास है, फिर निकल के पास है, फिर कोबाल्ट के पास है, फिर आयरन के पास है, फिर क्रोमियम के पास है, फिर कॉपर के पास है, फिर इसके पास है। ये दिखाओ तो दरसा ये लो जिसका जिसमें से कि देखो सबसे पहले V है, ठीक है। उसके बाद टाइटेनियम कहाँ चला गया, टाइटेनियम है, फिर निकल है, हाँ इसका यहीं से याद कर लो। सबसे पहले वरेडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर निकल है, फिर कोबाल्ट है, फिर कोबाल्ट के बाद फिर आयरन है, फिर क्रोमियम है, फिर कॉपर है, फिर है, फिर मैग्नीज है, फिर जिंक है। वरेडियम, टाइटेनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, स्कैंडियम, मैग्नीज और जिंक। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट जनरली इंक्रीज करेगा विद डिक्रीज इन द मेटालिक रेडियस कपल्ड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। दस फ्रॉम टाइटेनियम से लेकर निकल तक, टाइटेनियम से लेकर निकल तक यानी कि 4B से 8 तक, 4B से 8B तक जो रहेगा, कहाँ गया, डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द जनरल इंक्रीज विद डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस। तो जो जितना भी टाइटेनियम से निकल तक रहेगा उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी रहेगा, ठीक है। यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेरेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज का ज़्यादा रहेगा, फिर आयरन का भरेगा, फिर कोबाल्ट का रहेगा, फिर निकल का रहेगा। लेकिन उसके बाद कॉपर और जिंक में घटेगा फिर, ठीक है। कॉपर बड़ा होगा फिर जिंक घटेगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इन डी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में कहाँ गया डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाँ डी ब्लॉक में OS और IR के पास हाईएस्ट डेंसिटी रहेगा और 3D सीरीज में CU के पास ज़्यादा रहेगा। OS और IR जो कि 5D सीरीज का है, ये दोनों के पास हाईएस्ट डेंसिटी रहेगा डी ब्लॉक में, और 3D सीरीज में CU के पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई के बारे में। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो एटॉमिक और आयनिक रेडाई होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में स्मॉलर होता है, they are smaller than their corresponding S block element and greater than their P block element, ठीक है। सीरीज द एटॉमिक रेडाई फर्स्ट डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो
घटता रहता है। इसलिए जैसे 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 सीरीज़ में, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है ना, इसलिए रेडाई जो होता है घटता रहता है। फिर मिडिल तक, फिर देन बिकम कांस्टेंट हो जाएगा, फिर सीरीज में एक थोड़ा सा शो करेगा स्लाइटली। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन बिगिनिंग में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट विद द इंक्रीज इन डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, विच काउंटर बैलेंस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक number. As a result, atomic radii remain practically same after midway of the series. However, near the end of the series, electron-electron repulsion between the added electron in the same d orbital are greater than attractive force due to increased nuclear charge. Thus, result in expansion of the electron cloud, and thus the atomic radii increases. देखो, the atomic and ionic radii for transition elements are smaller than their corresponding s block element and are greater than their corresponding p block element. In series, the atomic radii first decrease with increase in atomic number up to a middle of the series, then become constant at the end of the series, show slight increase. This is due to the fact that in beginning the atomic radius decrease करता है, the nuclear charge increases, but with the increase in d electron screening effect increases, which counterbalance the increased nuclear charge due to increase in atomic number. As a result, the atomic radii remain practically same after midway of the series. However, near the end of the series, the electron-electron repulsion, देखो फिर क्या बोल रहा है कि जब सीरीज का एंड होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द एडर इलेक्ट्रॉन इज द सेम इन द सेम डी ऑर्बिटल जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दस द एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए तो इसके यानी कि स्केनियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सबका नॉर्मल रहेगा, लेकिन अच्छा ठीक, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। The atomic radius radii increase down the group from the first transition series to the second transition series, but the atomic radii of the second and third transition series are always the same. ठीक है, फिर देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, द एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एनर्जीज एलिमेंट यूजुअली लाई बिटवीन एस और पी ब्लॉक, ठीक है, द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड with atomic number. This is due to the increase in nuclear charge with number, ठीक है, तो the initial energy of transition element usually lie between those of S and P block element. Their ionization energy increases in the period with atomic number. The ionization energy of transition element usually lie between those of S and P block element. Their ionization energy increases in period with atomic number. This is due to the increase in nuclear charge with atomic number, which accompanies the filling of the inner d orbital. First, ionization energy and 5D element जो होता है higher than those of the 3D and 4D element. This is due to the greater effective nuclear charge acting on outer valence electron because of weak shielding of the nucleus by 4 of electron.
The ionization energy of the 3D elements are irregular. तो E1